السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورہ نور کے رکو نمبر 4 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورہ نور کے رکو نمبر 4 میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 34 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئی ویورز، ہم کے پہلے تشریح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ نور کے رکو نمبر 4 کی قرأت سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِن قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبيولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أراد الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن
इन्ना गफूरुर रहीम वलक़द अन्ज़लना अलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिम व मसलुम मिनल्लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम व मौइज़ातुल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल ना हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो, अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो तब तक तुमको इजाज़त ना दी जाए इसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि उस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकिज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई ना बसता हो और इसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीचे रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करे, ये उनके लिए बड़ी पाकिज़गी की बात है। और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे बाखबर है, खुदा उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करे और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करे, मगर जो उनमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करे और अपने खावन और बाप और ससुर और बेटों और खावन के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लोंडी गुलामों के सिवा नीज उन खदाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखे, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ ना हो, बस उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और श्रृंगार के मकामात को ज़ाहिर ना होने दे, और अपने पाँव ऐसे तौर पर ज़मीन पर ना मारे कि झंकार कानों पर पहुँचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों से निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लूंडियों के भी जो नेक हो निकाह कर दिया करो। अगर मुफलिस होंगे तो खुदा उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा, और खुदा बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो वो पाकदामनी को इख्तियार किए रहे यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फजल से गनी कर देगा। और जो गुलाम तुम से मुकातबत चाहे, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उनमें से उनको भी दो। और अपनी लोंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहे तो बेशर्मी से दुनियावी ज़िंदगी के फ़वाइद हासिल करने के लिए बदकारी को मजबूर ना करे, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाज़िल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेज़गारों के लिए नसीहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।